هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالس ہیئر. امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ الرعد آیت نمبر 16 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین آمین آمین. قل من رب السماوات والارض، آپ پوچھیں کون آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. افتخذتم، کیا تم بناتے ہو من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، حمایتی یا دوست، لا یملکون، وہ بس نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، نفعا، کچھ نفع، ولا ضرا، اور نہ ہی کوئی نقصان. قل، آپ کہہ دیجئے، حل، کیا، یستوی، برابر ہے، کیا یہ برابر ہے، اعما، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا یہ برابر ہو جائے گا جو اندھیرا ہے اور اجالا. ام یجعل للہ، کیا تم بناتے ہو اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، خلقو، اس نے پیدا کیا، کا خلقہ، اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ، تو اس کے مشابہ ہو گئی، خلق و پیدائش، علیہم، ان پر. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا اور زبردست غالب والا ہے. انزل من السماء ماء فسالت، سو اس نے اتارا آسمان سے پانی، سو بہہ پڑے، اودیت بقدرها، ندی نالے اپنے اپنے اندازے سے، فاحتمل السیل، پھر اٹھا لیا نالا، زبدن، جھاگ، رابیا، پھولا ہوا جھاگ، ومما، سے جو، یوقدون، تپاتے ہیں، تپائے ہوئے ہیں، علیہ، اس پر، فی النار، آگ میں، فی النار ابتغاء حلیتی، آگ میں حاصل کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، حلیتن، زیور، او متاعن، اسباب، زبدن، جھاگ، مثلہ، اسی جیسا ہے، کذالک، اسی طرح سے، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، حق، حق کو، وباطل، اور باطل کو، فاما الزبد، سو یہ جھاگ، فیذهب، دور ہو جاتا ہے، جفاء، سوکھ کر، واما، اور لیکن، ما ينفع، جو نفع پہنچاتا ہے، الناس، لوگوں کو، فیمکث، تو ٹھہرا رہتا ہے وہ، فی الارض، زمین میں، کذالک یضرب اللہ الامثال، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی طرح طرح کی مثالیں کھول کر بیان کرتا ہے. گزشتہ آیات سے برابر ہم توحید کے بارے میں ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. توحید کی حقیقت کا بیان چلا آ رہا ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، جس سے شرک نہ کرنے کے بارے میں خود بخود واضح ہو گیا ہے کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے وحدانیت پر کس قدر زور دیا ہے کہ ایک اللہ کو مانیے، یکتا اسی کو مانیے، اسی کے آگے سر جھکائیے، اسی سے ہر طرح کی ہیلپ مانگیے، وہی ہے جو آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے. اب ان آیات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہیے، اچھا یہ بتائیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ ان سے پوچھئے، ان مشرکین سے کہیے، مشرکین کون تھے؟ جو مکہ میں رہتے تھے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ اب آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا یہ بتائیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ مشرکین عرب باوجود
बुत परस्ती के वो इस चीज के भी कायल थे कि जमीन और आसमान को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लिहाजा इसका सवाल का जवाब वो इनकार की सूरत में नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये इनकार खुद इनके अपने अकीदे के खिलाफ था। याद रखिए जो मुशरिकीन थे वो बुतों को भी मानते थे और अल्लाह ताला को भी मानते थे। वो ये समझते थे कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो माअज़ल्लाह ये समझते थे कि ये बुतों के भी काम है, ये बुतों ने भी ये चीज़ें कर दी हैं। जैसे कि हमने शुरू वाली आयत में, ये सूरतुल बक़रा में भी ये पढ़ा था कि जब वो सदका निकालते या वो इस तरह से ज़िबा करते या जानवर अल्लाह के रास्ते में जब वो उसकी कुर्बानी किया करते, तो वो कहते थे कि एक हिस्सा बुतों का है, एक हिस्सा अल्लाह का है, माअज़ल्लाह। इस तरह से उनकी अपनी थॉट्स थी, इस तरह के उनके अपने ख़यालात थे। तो इसलिए वो इस तरह से कहते थे। तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा नहीं किया? अगर वो इस चीज़ का इनकार करते तो खुद उनके अपने अकीदे के अगेंस्ट बात हो जानी थी कि उन्होंने अपने अकीदे के अगेंस्ट बात की है। तो वो इसी चीज़ के कायल थे, तो इसीलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये पूछते, तो वो इसका जवाब देने से कतराते थे, क्योंकि इकरार के बाद तौहीद का मानना लाज़िम आ जाता था और शिर्क के लिए कोई माक़ूल बुनियाद बाकी नहीं रहती थी, इसलिए वो इस सवाल के जवाब में चुप हो जाते थे। यही वजह है कि कुरान करीम में जगह-जगह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि इनसे पूछिए ज़मीन और आसमान का खालिक कौन है? कायनात का रब कौन है? आपको रिज़्क देने वाला कौन है? फिर ये हुक्म दिया जाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद इस सवाल के जवाब में कह दीजिए, फरमा दीजिए आसमान और ज़मीन का रब अल्लाह है। यानी ए मुशरिकीन, जब तुम खुद रब्बियत का इकरार सिर्फ़ अल्लाह के लिए करते हो, तो फिर मदद के लिए दूसरे हमायती कहाँ से तजवीज़ कर लेते हो? हालाँकि वो ज़र्रा बराबर ना तो आपको नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान देने का इख्तियार रखते हैं। तो ए मुशरिकीन, ज़रा सोचिए तो सही कि कितनी नामाकूल बात है कि आप लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें अल्लाह के करने की हैं, कुछ जो है वो बुतों के करने की है, माअज़ल्लाह। फिर तौहीद पर कायम रहने वाले मोमिन और मुशरिक के दरमियान फ़र्क भी यहाँ पे वाज़ेह बता दिया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे दी गई है कि क्या बिना देखने वाला और अंधा बराबर हो सकते हैं? क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कुल हल यस्तविल अअमा, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? यस्तविल अअमा वल बसीर, क्या एक अंधा और देखने वाला, बसीर देखने वाला बराबर हो सकते हैं? अम हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, और क्या अंधेरा और रोशनी इक्वल हो सकते हैं? ना तो अंधेरा और रोशनी इक्वल हो सकते हैं, ना ही अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं। तो अब इसमें अंधा किसको बोला गया है? जो कि तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए अपनी आँखों को सिर्फ़ बंद कर ले। तौहीद उसके सामने है, हर चीज़ उसके सामने है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ, हर चीज़ उसके सामने वाज़ेह खुल के अल्लाह ने उसको बयान कर दिया, खोल के सामने रख दिया है, लेकिन वो अपनी आँखों को बंद कर ले, तो इसमें कहा गया है कि वो अंधों की मानिंद है। और जो अपनी आँखों को खुला रखे, वो क्या है? अपनी आँखों को खुला रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते पे चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन-जिन चीज़ों के बारे में कह दिया कि आपने ये काम करने हैं, इस तरह से अपनी लाइफ़ को मेंटेन करना है, इस तरह से आपने अपनी लाइफ़ को गुज़ारना है, तो वो उसको कहा गया है कि ये बसीर है, ये आँखें भी रखता है, ये आँखों का इस्तेमाल भी करता है, ये आँखों के ज़रिए से देख भी रहा है। तो फिर साथ ही कहा गया है जैसे कि नूर और ज़ुल्मात किसको कहते हैं? अंधेरे को कहते हैं। तो क्या एक अंधा मुशरिक जो शिर्क के अंधेरियों में, शिर्क की गुमराहियों में फंसा हुआ है, और एक मोमिन जो नूरे ईमान से आरास्ता है, बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ दोनों एक नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। फिर मुशरिकीन से एक और सवाल किया जाता है कि जैसे मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की, क्या तुम्हारे बातिल माबूदों ने भी कोई ऐसी चीज़ पैदा की है? वो तो एक मक्खी का पर, एक मच्छर की टांग भी नहीं बना सकते, बल्कि तमाम चीज़ों की तरह खुद भी इसी ज़बरदस्त अकेले अल्लाह की मखलूक हैं। वो अकेला एक रब है, वो यकता है, उसी की ये मखलूक है, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह ताला के साथ गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। तो हक व बातिल की एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से दी गई है इन आयात के ज़रिए से कि आसमान से बारिश उतरी जिससे नदी नाले बह पड़े, हर नाले में इसके ज़र्फ़ और गुंजाइश के मुताबिक पानी जारी हुआ। छोटे जो नाले थे उनमें
कम पानी था, बड़े जो नाले थे उनमें ज्यादा पानी था। पानी जब जमीन पर रवा होके इसमें कूड़ा करकट घास फूस पानी की सतह पर बहा लाया, तो दूसरी मिसाल इसकी ये बयान की गई है जैसे कि तेज आग में चांदी, तांबा, लोहा और दूसरी धातें पिघलाते हैं ताकि जेवर, बर्तन और हथियार वगैरह तैयार करें, और इससे इनका मैल कुचैल और झाग ऊपर उठता है। मगर थोड़ी देर बाद जो मैल कुचैल होता है वो अलहदा कर दिया जाता है, और जो असली कारामद चीज होती है वही बाकी रह जाती है, जिससे मुख्तलिफ तौर पर लोग जो है वो तरह तरह से उससे फायदा उठाते हैं, उससे नफा हासिल करते हैं। यही मिसाल हक को बातिल की है, यही मिसाल झूठ और सच की है। यही मिसाल यहाँ पे वाज़ह करके बयान की गई है कि यही मिसाल है, इसको आप समझ लीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नाज़िल की जाती है और वही अल्लाह ताला की तरफ से सामने आ जाती है, और दीने जब वही आसमाने दीने हक को लेकर उतरती है, तो इंसानों के कलूब अपने-अपने ज़र्फ़ और इस्तेदाद के मुताबिक उससे नफ़ा हासिल करते हैं, उससे फैज़याब होते हैं। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उससे जो लोग जितना अपने बसारत को खोल के रखते हैं, जितना अपने दिलों को वसी करके रखते हैं, अल्लाह उतनी ही हिदायत उनको अता फरमा देता है। अगर अपने दिल को तंग रखेंगे, अगर अल्लाह ताला के अहकामात से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा सबसे जो मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, जितना ज़्यादा आप लोग सॉन्ग्स में इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज़्यादा आप दीन से दूर होंगे। गाना जो है वो दिल में नफ़ाक़ पैदा करता है। नफ़ाक़ क्या है? नफ़ाक़ ये होगा कि आपका दिल ही नहीं करेगा नेक काम करने के लिए, आपका दिल ही नहीं करेगा नमाज़ पढ़ने के लिए, आपका दिल ही नहीं करेगा कुरान खोलने के लिए, आपका दिल ही नहीं करेगा कोई अच्छा काम करने के लिए, आपका दिल ही नहीं करेगा अज़कार पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका दिल क्या करेगा? शैतान आपको बहकाएगा, फिसलाएगा उस तरफ, सॉन्ग सुने फिर आपको सुकून मिलेगा। वो बज़ाहिर शैतान ये कहेगा कि आपको सुकून मिल रहा है, वो सुकून नहीं होगा, वो एक तरह की बेचैनी होगी। ठीक है? जितने आप अल्लाह ताला के साथ इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आपको मज़ा आएगा कुरान पढ़ने में, दीन की क्लासेस अटेंड करने में, ये तमाम चीज़ों में आपको फिर मज़ा आना स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से जब अल्लाह ताला के अहकामात नाज़िल होते हैं, या जो कुरान है या हिदायत है अल्लाह की तरफ से जब भेजा जाता है, तो हर इंसान अपनी-अपनी हैसियत, अपनी-अपनी ताकत के मुताबिक, अब हैसियत इसमें ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट के मुताबिक, अब जिसको जितना इंटरेस्ट होगा हिदायत में, जिसको जितना इंटरेस्ट होगा कुरान में, जिसको जितना इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में, वही इन चीज़ों की तरफ आएगा, हर बंदा इनकी तरफ नहीं आएगा। तो वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उससे फैज़ हातिल हासिल करते हैं। फिर हक़ व बातिल जब बाहम इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिस तरह मैल कुचैल या कूड़ा-करकट ऊपर आ जाता है, फिर बज़ाहिर बातिल झाग की तरह हक़ को दबा लेता है, इसी तरह एक आर्ज़ी ये वो हो रहा होता है, एक आर्ज़ी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो जैसे ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है, तो जो असल और कार-आमद चीज़ होती है, लाइक सोना, तांबा, धात जो होती है, उसको पिघलाने के बाद जो कार-आमद चीज़ होती है, वो बच जाती है। वो जितना उसमें पिघला हुआ होता है, जितनी उसने चोट खाई हुई होती है, इतनी ही वो कार-आमद चीज़ बाकी रह जाती है। इसी तरह से दीन में जितनी सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे, उतना ही अल्लाह ताला दीन पे इस्तिकामत अता फरमाएगा। अब यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से इस चीज़ को वाज़िह करके बता दिया गया है कि जब हक़ व बातिल, दीन और दुनिया बाहम टकराते हैं, दोनों का मुकाबला होता है, थोड़ी देर के लिए हमें लग रहा होता है कि बातिल बड़ा ऊँचा होता जा रहा है, हमें लग रहा होता है दुनियादार जीत गए हैं, हमें लग रहा होता है ये जो झूठ बोल रहा है ना, हम दिल में सोच रहे होते हैं ये जो झूठ बोल रहा है इसकी जीत हो रही है। अब इसको फलाँ समझ रहा होगा कि इसने झूठ बोला है, ये बच गया है। हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि बज़ाहिर झूठ बोलने वाला, बज़ाहिर धोखाधही देने वाला, बज़ाहिर ये लेग पुलिंग करने वाला, बज़ाहिर बैकबाइटर जो है, वो सक्सेसफुल है। होता ऐसा नहीं है। झूठ कब तक बोल सकते हैं? वो लोग कब तक झूठ बोल के सक्सेसफुल हो सकते हैं? यही चीज़ है कि बज़ाहिर जो बातिल है, जो झूठ है, वो ऊँचा होता हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन बिलाआखिर हमेशा कामयाबी सच की होती है। एंडिंग सच की होती है। जितना देखिए एक झूठ बोलेंगे ना उसके लिए फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब कहा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, उसपे आपकी एक्सप्लेनेशन माँगी जाएगी, देन उसके लिए आपको उसके साथ जोड़ते-जड़ाते बहुत सारे झूठ बोलने पड़ जाएँगे। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए झूठ तो झूठ होता है, तो फिर जो हमेशा सच होता है, जो हकीकत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से वो वाज़िह हो जाती है और वो सामने आती है।
تو اس لیے ہمیشہ جب آپ رائٹ سائڈ پہ ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں، کوئی جھوٹ بول کے بھی اگر آپ کو نیچا دکھانے کی، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، صرف اس چیز پہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، اور بے شک یہ اس ٹائم کے لیے سکسیسفل ہو رہی ہیں، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، تو وہی سکسیسفل کرنے والا ہے، وہ حقیقی کامیابی دے گا آپ کو، دنیاوی حقیقی کامیابی بھی اور اخروی حقیقی کامیابی بھی وہی آپ کو دینے والی ذات ہے۔ تو بلاخر جو باطل ہے وہ منتشر ہوتا ہے، حق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور غالب ہو کر رہتا ہے۔ کسی مومن کو باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ عارضی طور پہ اس نے جھوٹ بولا تھا تو یہ کامیاب ہو گیا تھا، تو مجھے بھی جھوٹ بول کے کامیاب ہونا ہے۔ یہ چیز کبھی بھی کسی مومن کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ عارضی نمائش سے ہم دھوکہ کھا سکیں۔ انجام ہمیشہ اچھی اور خالص چیز کا ہی ہوتا ہے۔ تو ان دو ایگزامپلس کے ذریعے سے قرآن پاک میں واضح کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو میل کچیل ہوتا ہے وہ عارضی طور پہ اوپر اٹھتا ہے، جتنا زیادہ اس کے نیچے وہ فائر ہوتی ہے، جتنا زیادہ اس کو پگھلایا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ جھاگ کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جیت اسی تانبے کی، اسی دھات کی، اسی سونے کی ہوتی ہے جس نے زیادہ چوٹ کھائی ہوئی ہوتی ہے اور جس نے زیادہ اس چیز کو بیئر کیا ہوتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان کے لیے جنہوں نے انہیں مان لیا اپنے رب کے حکم کو بھلائی کے لیے، والذین، اور جن لوگوں نے لم یستجیبوا نہ مانا لہو اس کا حکم، ولو ان، اگر یہ کہ لہم ان کے لیے ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیعا سب کا سب، ومثلہ اور اس جیسا، معہو اس کے ساتھ، لفتدو کے فدیہ میں دے دیں، بھی اس کو، اولئک وہی ہے، لہم ان کے لیے، سوء برا حساب ٹھکانہ ہے، یا ان سے برا حساب لیا جائے گا، واہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، و جہنم ہے، وبئس المہاد، جو کہ ایک برا ٹھکانہ ہے یا بری جگہ ہے۔ افامن یعلم، پس جو جانتا ہے، انما انزل، کہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، حق کمن ہوا جیسا وہ، اعما اندھا ہے، انما اس کے سوا نہیں، یتذکر سمجھتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، الذین یوفون جو لوگ پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کا وعدہ، ولا ينقضون المیثاق اور وہ نہیں توڑتے اس کیے ہوئے پختہ وعدے کو، اس کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو وہ لوگ کبھی بھی نہیں توڑتے۔ تو گزشتہ جو آیات ہم نے ڈسکس کی، اس میں 2 ایگزامپلس کے ذریعے سے حق و باطل کا حال بیان کیا گیا تھا۔ اب ان اہل حق اور اہل باطل کی علامات، صفات، ان کے اچھے برے اعمال، ان کی جزا و سزا کا حال ان آیات میں جو پینڈنگ تھی ان میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو بڑے مزے کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ قبول کیا، یعنی توحید کو اختیار کیا، یعنی ایک اللہ کو مانا، اسی کے آگے سر جھکایا، اسی سے ہر ہیلپ مانگی، اسی سے کہا بس میرا وہی رب ہے، وہی مجھے دنیاوی کامیابیاں بھی عطا کرے گا، وہی مجھے اخروی کامیابیاں بھی عطا کرے گا، اور میں نے ہمیشہ ڈٹ کے رہنا ہے، بے شک مجھ پہ کچھ سختی بھی آ جائے، کچھ تنگی بھی آ جائے، لیکن میں نے ایک اللہ کی مان کے چلنا ہے، ایک اللہ ہی کی میں نے اطاعت کرنی ہے، اور میں نے کبھی بھی غیر اللہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا، اس چیز کو قبول کر لیا، یعنی توحید کا رستہ اختیار کر لیا، رسالت کو بھی مان لیا، غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کے ہو کر رہے، اور جو آب ہدایت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا اس کو نوش جان کیا، اور جو ان کے ذہن میں وساوس آتے تھے، طرح طرح کے وسوسے آتے تھے، وسوسوں کے میل کچیل کو باہر پھینک دیا، اور ہدایت کو اڈاپٹ کر لیا، ہدایت کو اپنے اوپر، ہدایت کو لے لیا، ہدایت کو اوڑھ لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، جو کہ ان آیات میں بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا کہا مان لیا ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ موٹیویشن یہاں پہ دی ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تسلی دی ہوئی ہے یہاں پہ ان آیات میں، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے کام کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر کیا ہوگا کہ آپ کی دنیا کو بھی اچھا کر دیا جائے گا، آپ کی آخرت کو بھی بہترین بنا دیا جائے گا، اگر آپ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کا کہا مان لیں گے۔ پہلی آیت میں واضح کر کے کھول کے بیان کیا گیا ہے، والذین استجابوا،
लिल्लज़ीन इस्तजाबू, ये देखिए यहाँ पे लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहा मान लिया उनके लिए अच्छा बदला होगा। अब अच्छा बदला कहाँ है? दुनिया में भी है और आखिरत में भी। अच्छा बदला अल्लाह ने दे देना है उनको, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहे को नहीं माना, अपनी मनमानी करते रहे, तो उनके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा? वो अगली आयत के, इसी आयत के सेकंड पार्ट में बता दिया गया है कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। पहले बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर की बात की जा रही है। देखिए, कुरान पाक में जहाँ पे भी बात की जाती है ना जज़ा और सज़ा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीरन व नज़ीरा बनाकर भेजा गया। खुशखबरी देने वाले, डराने वाले, किस चीज़ की खुशखबरी देने वाले? जन्नत की खुशखबरी देने वाले, और डराने वाले, अज़ाब से डराने वाले। तो इसी तरह से कुरान पाक भी एक बहुत बड़ा मोअज़्ज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें आयात को इतने प्यारे अंदाज़ में बयान किया गया है ना, अगर एक जगह थोड़ा-सा डराया जा रहा होता है ना, साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से मोटिवेशनल आयात होती हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, मोमिनीन की, मोमिनात की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में तसल्ली दी हुई होती है। उनको हौसला दिया होता है कि अगर आप अच्छे अमाल करेंगे, तो आपको एज़ अ रिवार्ड जन्नत मिलेगी, और जन्नत में क्या आपके लिए बहुत अच्छा बदला होगा। दुनिया और आखिरत की भलाई होगी, दुनिया की भलाई होगी, आखिरत की भलाई होगी, अंजाम में अच्छा अच्छा बदला होगा, यानी जन्नत मुकर्रर है। जिन लोगों ने अल्लाह की दावत को कबूल नहीं किया, अपनी कुफ्र और मासियत पर, गुनाहों पर कायम रहे, ना तो रसूल पाक को माना, ना कुरान की सदाकत को माना, ना उसका इकरार किया, ना अकायद इस्लामिया की तस्दीक की, तो इन लोगों का नतीजा बहुत बुरा होगा। यहाँ दुनिया में तो खैर जिस तरह से उन्होंने गुज़ार लिया, लेकिन आखिरत में उनकी घबराहट और परेशानी का ये आलम होगा कि अगर तमाम दुनिया के खज़ाने इनके हाथ में हों, बल्कि इस कदर और भी वो तमन्ना करेंगे कि हम सारे फ़िदिया देकर, बदला देकर इस अज़ाब से अपनी जान छुड़ा लें। लेकिन क्या होगा कि उसका वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ना तो वो फ़िदिया दे सकेंगे, ना कोई और चीज़ दे सकेंगे, ना कोई पैसा दे सकेंगे, ना कोई सोना, चाँदी, ज़ेवरात, कुछ दे के वो उन चीज़ों से खलासी हासिल नहीं कर सकते। और इतनी वो परेशानी के आलम में होंगे, वो चाहेंगे कि परेशानी और अज़ाब आखिरत से ये जो है इनसे छूट जाए, मगर ये कहाँ मुमकिन होगा? अव्वल तो इनके पास वहाँ माल कहाँ होगा? माल तो वहाँ पे उनके पास होगा ही नहीं। अगर बिलफ़र्ज़ महाल वो सोचें कि हम कहीं से इस चीज़ को ले भी आएँ, तो कबूल कहाँ हो सकता है? फिर जब इनके हिसाब का टाइम आएगा, इनका हिसाब भी बहुत सख्त होगा, यानी सख्ती से इनके अमाल का मुहासबा किया जाएगा, और ज़र्रा-ज़र्रा पर उनसे मुआख़ज़ा किया जाएगा, उनसे बाज़-पुर्स होगी, उनकी पकड़ होगी, बात-बात पर पूरी तरह पकड़े जाएँगे, फिर नतीजा उनका ठिकाना जहन्नम होगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी छोटी-सी भी अदालत लगनी हो ना, हमें सोच-सोच के टेंशन हो जाती है, हमारा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, अब मेरी पकड़ होगी, अब मुझे ये कह देंगी, अब मेरी सास मुझे ये कह देंगी, मेरी कंप्लेन कर देंगी मेरे हस्बैंड से। ये इन चीज़ों का इतना डर सरों पे सवार कर लेते हैं लोग, और इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं कि मुझे घबराहट बहुत हो रही है, उससे बचने की कोई दुआ बता दीजिए, मेरे से ये मिस्टेक हो चुकी है, तो मेरी बाज़-पुर्स होगी, मेरे हस्बैंड मेरे से पूछेंगे कि ये तुमने क्या किया? सास का बड़ा डर होता है। अब मेरी सास मेरे से पूछेंगी, फिर मेरी कंप्लेन करेंगी, फिर ऐसा होगा। लेकिन अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह ताला के सामने जब सब लोग खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद जब अल्लाह ताला ज़र्रा-ज़र्रे के बारे में पूछेगा, आपने फलाँ टाइम में ये किया था, आपने फलाँ टाइम में ये किया था, आपने ये किया था, और किसी बात पे हम इनकार नहीं कर सकेंगे। और दुनिया में क्या होता है, दुनिया में बिलीव करें, मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरी थी एक साथ ही जानने वाली, मैंने कोई एक ऐसी बात हुई, मैंने कहा कि उनको ये बात पता चल गई है, आपने उनके ये इस अगेंस्ट बात की थी, तो मेबी वो आपसे पूछें, तो जब उनको पता चला, पहले तो वो बहुत झूठ बोलती रही। हर एक बंदे के सामने उन्होंने काफ़ी झूठ बोल लिए, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो सब इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अब आप क्या करेंगी ना? आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया जो मुझे शॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा था, और मैं इतनी हैरान थी इस चीज़, क्योंकि शायद मैंने पहले ऐसे कभी लोगों को नहीं देखा था। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मैं मुकर जाऊँगी। और मैं इतनी सरप्राइज़्ड, इतनी, क्योंकि जब हम टीचर होते हैं ना, तब हमें लग रहा होता है कि ना हर चीज़ स्मूथली चल रही है, हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन जब जैसे-जैसे पोस्ट बढ़ती है ना, फिर हमें बहुत सी अंदर की चीज़ों का पता चलना शुरू होता है कि क्या है, कैसे है। और जब उन्होंने मुझे ये बात की ना, कहती, "कोई मसला नहीं है, मैंने मुकर जाना है।" मैंने कहा, "नहीं, ये बात हुई नहीं थी।" और मैं एकदम से, जैसे बंदा काँप नहीं जाता, इस तरह से हुई। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ पे तो मुकर जाएँगी। तो
कितनी वो एक डिटाई थी कि मैं तो इस चीज से ही मुकर जाऊंगी कि ये ऐसा हो गया था। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि जब अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना पड़ जाएगा, तब हम में से कोई मुकर भी नहीं सकेगा। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं तो मुकर जाऊंगी और मेरे से इस बात बात के बारे में बात पुरसी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह जब जब उनको इन चीजों के बारे में बताएगा, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, और मुजरमों की तरह से खड़े होंगे सब लोग और पूरी तरह पकड़े जाएंगे, फिर उनका नतीजा, उनका ठिकाना जहन्नम होगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो बहुत बुरी जगह है। और इसमें इन आयात में अहले दानिश, अक्लमंदों की भी बात की जा रही है। अहले दानिश, अक्लमंद कौन है, इनकी सफा जिक्र फरमाई जाती है कि वो कैसे होते हैं, इनके अमाल क्या होते हैं, दुनिया में इनकी सीरत और किरदार का रंग क्या होता है। इन अहले अकल, समझदार और फहीम लोगों की पहले शनाख्त और सिफ्त ये बताई गई है, वो लोग अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं। अल्लाह से जो वादा कर लिया है ना, उसको पूरा करना है उन्होंने। तो अब हमने ये भी सोचना है कि हम में कौन अक्लमंद है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब आपकी असाइनमेंट्स थोड़ी चेंज भी होंगी, जिसमें हमने अपना मुहासबा भी किया करना है कि कौन कौन से हम अमाल कर रहे हैं, पढ़ते तो जा रहे हैं, क्या हमारे अंदर अमल भी मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है, तो अब अक्लमंदों की हमें लग रहा होता है हम बड़े अक्लमंद हैं, और जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं सबको लग रहा होगा कि मैं तो बड़ी अक्लमंद हूँ, क्योंकि जब हम बातें करते हैं ना, तो बातें करने में हमें कोई हरा नहीं सकता, और हमें लग रहा होता है कि हमसे अक्लमंद कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अक्लमंदों की इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, अल्लाह ने कितना वाज़ेह करके बयान कर दिया। हक और सच का वादा अल्लाह ताला ने बताया कि क्या अंधा और देखने वाला इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि देखिए कि इन्नमा बेशक यतज़क्करु उलुल अलबाब, अक्ल वाले हैं जो कि इस चीज को समझते हैं या इस चीज का जिक्र करते हैं, वही हैं जो कि इस चीज का जिक्र कर सकते हैं। तो अब अक्लमंदों की सफात कौन सी यहाँ पे बयान की गई है, अक्लमंदों की ये सफात बयान की गई है, सबसे पहले जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया होता है उसको पूरा करते हैं। क्या अल्लाह से वादा किया है, आपको याद ना हो, हमें याद ना हो, हमें भूल गया हो, लेकिन अल्लाह को याद है अल्लाह के साथ हमने क्या वादा किया था। आलमे अरवाह में हमने अल्लाह से वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, जब अल्लाह ने हमसे पूछा था तमाम रूहों को, आलमे अरवाह क्या है, जिसमें तमाम रूहों को जमा किया गया। रूहों को जमा करने के बाद तब कोई भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम ऐसा कोई सीन नहीं था, तमाम रूहें शुरू से अज़ल से अबद तक क़यामत तक के लिए जितनी भी रूहें हैं सबको अल्लाह ने आलम अरवाह में जमा किया, और सबसे एक क्वेश्चन किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है। अलस्तु सवाल किया गया उनसे, बिरब्बिकुम, आपके रब के लिए उनसे सवाल किया गया आपका रब कौन है। क़ालू बला, सब बोले आपके सिवा कौन हो सकता है हमारा रब, हम सब ने इकरार किया था कि आपके सिवा कौन रब हो सकता है। और इन आयात में सूरह राद में बार बार तौहीद का इकरार करने का कहा गया है कि एक इलाह को मानिए, एक अल्लाह को मानिए, उसी को यकता मानिए, उसी से मदद मांगिए। और देखिए यहाँ पे उसी अहद की भी बात की जा रही है कि जो हम सब ने अल्लाह ताला से पहला अहद लिया था, जो कि रब्बियत पे था, जो अज़ल में तमाम अरवाह को हाजिर करके लिया गया था। अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, जिसके जवाब में सब ने यक जुबान होकर कहा था, बला क्यों नहीं। और सब बोले थे, भला क्यों नहीं, आप ज़रूर हमारे रब हैं। इसी तरह तमाम अहकाम इलाहिया की अताअत, तमाम फ़राइज़ की अदायगी, तमाम नाजायज़ चीज़ों से इज्तनाब, ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ में आ जाती हैं कि अल्लाह का इकरार और उस अहद को पूरा करना कि जो हमने अल्लाह से आलम अरवाह में कर लिया था। इसमें नॉन मुस्लिम, मुस्लिम हर तरह की रूहें आ जाती हैं, जिन्होंने पहले अल्लाह ताला से वादा कर लिया था कि हम आपको ही मानते हैं, आपके सिवा हमारा कोई रब नहीं है। लेकिन हम उस अहद को भूल चुके हैं। देखिए अल्लाह का करोड़हा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की बेहतरीन दौलत से नवाज दिया। अल्लाह ताला ने हम पे इतना रहम किया कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी इतनी बेहतरीन दौलत से नवाजा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को हमारा लीडर बना दिया। वो हमारे लीडर अल्लाह ताला ने बना दिए कि जो हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड कर जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। गाइड करने के साथ हमें एक बुक दे दी, किताब दे दी, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे।
اگر آپ اس کے اکارڈنگ چلتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ نے اس کو پس پشت ڈال دیا تو ناکامی آپ کا منہ چڑھائے گی، آپ ناکامی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ بھی وہی وعدہ ہے جو ہم نے کیا تھا اور اس کو پورا کرنے کا ہم نے عہد کیا تھا۔ اب عقل مندوں کی یہ صفات یہی ہیں کہ سب سے پہلی اور بہترین صفت ان کی ایک ہی بیان کی گئی ہے، وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ سے وعدہ ہو اس کو توڑتے نہیں ہیں، دنیاوی جو بھی وعدہ کر لیں اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس کو اینڈ تک جتنی زندگی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی صفات یہاں پہ قرآن میں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارا شمار اہل حق میں شامل رکھیں اور ہمیں اہل باطل سے علیحدہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا فرمائے اور ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کیے ہوئے عہد کو ہمہ وقت یاد رکھنے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بد عہدی کی خصلت سے کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی ہمت بھی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔